or even in the long term, all the academic activities. Uh, Today, we have a very eminent, a very professional, body called White Code. They have revolutionized uh, the digital technology right from the kiosk to the giant corporate houses. They have been catering their services in the sectors of information technology, especially their services are highly appreciable in the academics. They have been rendering the services in not only just designing the various websites across the India, but also beyond the India. So we are very fortunate that today they have been here, and also we are very fortunate to uh, have the IQAC internal quality assurance cell, that is the cluster India, that is IQAC cluster India, under the dynamic leadership of Piyush Pahade sir. This IQAC cluster India has been, very pivotal, as well as a very uh, very in a forefront in performing the various functions, especially for the higher education, and also training all the higher education institutions in terms of gaining the right knowledge, the qualitative knowledge, the various qualitative tools to accredit an institution. Their aim is to bring all the remote colleges across the Maharashtra, India, and all the parts of rest of the Mofussil areas of the India. They have been doing this great job. I think almost all of us are very familiar that they have been running the various courses, various webinars, various activities. In the last 4 years, you could see that IQSC Cluster India has taken a very big lead role, especially in terms of training the various or novices colleges, or those colleges, those who are uh, aspiring to have the NAC accreditation. Besides that, those already have a NAC accreditation, even they are being guided by the IQSC Cluster India, because their expertise, knowledge, their hordes of people, or the resourceful people, and then their pool of knowledge is helping all of us to maneuver all kinds of glitches, all kinds of hurdles that we face while we create the entire SSR report, or documentation of all our NAC activities, or even the activities at a college, how to foster the quality, how to foster the various policies. In all dimensions, the IQSC Cluster India is helping us. So today we are very fortunate. The leader of the IQSC Cluster India, Dr. Piyush Pahade, is with us, and under his guidance, today, this one day workshop is organized. Besides, we also have our respected principal, Dr. Veena Sanekar. Under her dynamic leadership, our college is making one, our college is making all kinds of efforts in not only instilling the qualities, but also to sustaining the qualities that which we have possessed. So we have been working hard to come out with the various kinds of activities, especially under the Paramarsh, to help our mentee institution to accredit in the coming future, or in the maybe in the coming few months, or maybe in a few, I can say, days also. And I'm also very happy to have all the mentee institution representatives, their institution heads, their IQAC coordinators, their management people, almost all of them, they have been cooperating a lot for us. So I wish to inform these, all the dignitaries, those who are joined here on the Zoom, that we have a hordes of activities which are coming up in the entire October, this end of the October, and then over the November month, and then the first and the second week of the December.
We have been looking after this various needs of this mental institutions, especially in terms of NAC accreditation. So based on their needs and based on their requirement, we have been providing them the consultancy, and we wish to continue this job, especially under the UGC's novel scheme called UGC Paramarsh. Um, so we actually have every week we have planned every week one activity. For example, in the next week we are going to have criteria 1, criteria 2, NAC accreditation process, NAC documentation, criteria 3, criteria 4. Likewise, in all the 7 criterias will be dealt, as well as we will also deal with the documentation, the process of documentation, the techniques of documentation, as well as the various ways how technology can be brought in to document all kinds of activities that we do it in our college. So I'm very happy that I don't want to take too much of time, because we have a very resourceful resource person, Dr. Piyush Pahade, who is going to address us. So, but before I take him to, so I request no, Dr. Sunil Chandan Sive to take over and introduce our resourceful person, Dr. Sunil Chandan Sive. But before that, Sunil sir, I think Madam will welcome all these dignitaries, those who have joined as a participant, those who are here as the uh, those who are here as a resource persons, and then the host for us. Yeah, Madam. Good afternoon, everybody. Can you listen? Can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. We can hear you. I'm so happy that our IQSC has taken activity related to NAC. The enthusiasm of our IQSC is the kind of which should be appreciated. I can see the work of our IQSC team, which is working very dedicatedly and with commitment for not only our college, but for our mentee institutes who are collaborated with us under the scheme Paramarsh. We are very happy that in different meetings conducted by authorities, Dr. Pabrekar sir or Dr. Vijay Joshi, under RUSA and under UGC, the guidance which we received, our IQSC team is following those guidelines very well. And the main point behind working as a team is to grow and also help for growing. And with mentee institutes, the way which our team is working, and honestly, the reports which they have prepared, the workshops which they have planned, really have a great importance. As we all know that NAC is so important for all of us. And for upgrading ourselves, the criteria which are very important under NAC, our team is planning the workshops or seminars which are related to these criteria. I'm very happy that Dr. Piyush is there today, and the team IQSC Cluster India White Code. We have got very good rapport during the exams also. And all these dignitaries, all these resource persons, they are so helpful to us. I'm very happy. Again, the same team is with us. And I think we will collaborate with them for in future also for other more activities. I really welcome dignitaries,
management persons of our Menti institutes, teachers, professors from Menti institutes, their own IQC members, our own respectable and dear staff. I welcome one and all. I'm very happy today that we have planned this workshop under Paramarsh. And I feel that we will be able to plan such activities which will be helpful for all of us. Now we are not face to face in Corona pandemic, but in digital way. We are walking on the path with determination on the journey of success. I give all my best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you. Am I clearly audible? Yes, Sunil sir, please take over. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Good afternoon, everyone. This is Dr. Sunil Chandan Shive, a faculty from KJ Somaya College of Arts and Commerce. So I am here to introduce to our today's resource person. It gives me an immense pleasure to introduce Professor Piyush Pahade sir. He is a co-founder of IQAC Cluster India. So welcome you, sir, and thank you for accepting our invitation and joining with us for today's workshop. So before moving ahead, I would like to introduce to our today's resource person, Professor Piyush Pahade sir, with the help of his biodata. Professor Piyush Pahade sir is a head in the Department of Geology in H.V. Desai College, Pune, and co-founder of IQAC Cluster India. Basically, IQAC Cluster India is a movement to bring a quality in colleges by providing the every possible assistance for NAC accreditation and quality assistance in academics. He has trained more than 1,000 IQAC personnel and conducted the 10 webinars for both teaching and non-teaching staff on various quality aspects of the organization. He has published around 10 research papers in various international journals, and 8 books he has published related to the biology, geology, and biotechnology. He has presented papers in various national and international conferences and also chaired a session in international conferences. Professor Piyush Pahade is also a soft skill trainer and has conducted a several faculty development program in over 50 colleges and at national and international institutes. He is also IQC member for the MIT University Pune, Vivekananda Institute for Professional Studies, New Delhi, Modern Law College, Pune. So such a dynamic and energetic personality among us. Thank you, sir, for being with us. Dear friends, dear participants, also I would like to welcome and introduce to our team White Code, Mr. Amit Patil is the CEO of White Code, Mr. Ghanasham Nanavre sir, CMO of White Code, Ms. Sneha Zadav, and Mr. Sandeep Nanavre sir from White Code. So once again, I welcome you all, and I request Professor Piyush Pahade sir to start a session. Over to you, Piyush Pahade sir. Thank you, Sunil. A big namaskar to all. Respected Dr. Veena Sanekar Madam, Principal, Dr. Satyavan sir, Amit, Ghanasham, his team, heads of institutions from different colleges, Menti colleges, teaching faculty from Somaya College, from Menti colleges, and to the entire teaching fraternity. Good afternoon all, and let us start with this wonderful session on websites. A website plays a very important role in our life. Websites are the most recent way and the best way to communicate with the world.
a reliable website is one which knows its audience, which knows its credibility. It should be known for its accuracy. It should be known for its objectiveness. Objectiveness here I mean to say, it should not focus on either on religion or caste or any kind of gender biases. It must focus on, it should have an excellent coverage of the content. It must cover the organization properly. It must be an updated tool. It must be beautiful, that is, aesthetic value should be very good. It should be easy to navigate and it should be easily accessible. It should be compatible with a very large number of softwares. And therefore, having knowledge about website and IQAC knowing about website really plays a very important role. Very often we feel, what has IQAC to do with the website? Website is under the control of IQAC and the principal. An updated website is the law and the controls are with the IQAC. Keeping this in mind, let us try to know more about what a good website happens to be, what a NAC compliant website happens to be. Today we have with us the White Coat team and we will be looking into the website. How should a website be? What should a website be? What should a website have? What should a IQAC coordinator know about a website? How to design a website? What should the website contain? And what are the additional tools that a website can possibly have? So with this, we will start our discussion. And the co-speakers happen to be myself, Amit, Ghanesham, Sandeep, and Sneha. So to start about the website, let me move on to Amit and Sneha to ask me what is a website, Amit? Sir, as rightly said by you, website is the face of the institution. In this digital era, I must say that whenever someone is willing to take an admission to an institution or a vendor or a parent, whomsoever is about to visit your institution, I think he'll must be visiting your website first. So a website plays a very important role for an institution. Okay. And how is this website related to security of any kind? Because every time we say, oh, it has to be a secured website. Right, sir. Or I remember one small incident a year ago. One of the district police, if I'm not wrong, Thane, maybe, their website was hacked and later on their accounts were also hacked. And just before Diwali that time, so many 100 policemen were without money. Axis Bank accounts were hacked, something of that sort came in. And later on it was found out, all those things happened. But how is website related to all this? So this is another misconception we have, is that we are just an educational institution. So why would someone hack my website? Because there is no direct finance involved or there is no money online. If someone has to hack, they would go to a bank so to earn some money. But it is not like that. On internet, information is money, right? So whatever data that you have here on your website can be sold. So that is why security is very important. And as an educational institution, many of the times we are representing our nation because we are representing the youth. So that is why security is very important. And, what kind of security are we talking about?
Or So what is hacking in that case? Like we keep on hearing these words, hacking and whatnot. How does correct, it? correct, sir. So what hackers do is they can either steal the information that is there on the website, or they can steal the information of the user which is visiting your website, or what they can do is they can overload your server so that actual users may not get the required amount of server speed, space, information, right? Suppose we have online admission or online exam running on our server, so our students must be in a position to get the required resources, right? So what hackers could do here is they'll just overheat the server so that it cannot perform in the way that it is supposed to do. So this is what a hacker might do. And the question you are asking, that what security is, so security in short we can say in three words, that is authenticity, privacy, and integrity. So, by way of authenticity, we mean that the information, whatever that we have presented on our website, has to be authenticate. It has to be from the authenticate source. So, by means of privacy, we mean that it has to be shown to the correct person. And with integrity, we mean that whatever information that we want to show, it has to be shown to the end user. Otherwise, with the help of defacement, what hackers would do is they'll show some other information, and not the correct information that we want us to show. But then, what type of security are we talking about? Uh, Correct, sir. So the data security is really important. To give you a small insight into this, so there are as per the data available of 2019, there are like 1.94 billion. That is Not audible, sir, please. so. Am I audible now? I think so. We are the Yes, sir. Audible. audibility is good. Okay. There could be some local Yes, sir. problem, possibly. Okay. No problem. So as per the data available in 2019, there are about 200 crore websites, and of those, almost 50,000 websites get hacked each and every day. And we do not 50,000. want, yes, so that's a huge number, and we do not want our website to be a part of these hacked websites, right? Very true. Right. And so then, like, we keep on hearing a variety of words like SSL, Mhm. site law. We don't understand it. I, as a IQC coordinator, for quite a long time, I used to have, oh, what does that mean to me, and how does it relate to the organization, and why should an organization spend on it? This is what was the common thought that we had. Correct, correct. So whenever we hear a word website, we think that it has to be beautiful. I agree with you that it has to be beautiful. It has to look good. It has to have all the important information. But in addition to that, to give you an example, it would be something like we have all the money, but we do not have a lock to our safe. So that's dangerous, right? So you have a beautiful website, but you do not have a lock to your website. You do not have any security measures installed on it. So the some basic things we can, as we are all teachers or IQAC coordinators, principals, we are we are into academy, right? So we are not into technology. But what we can do is we can know these keywords and we can ask about them to our vendors, those who are developing our website. So just by asking these keywords, they'll give you some information and make sure that these things are there installed on your website. So the first thing is it must have an SSL certificate, and we can have a good firewall installed on the server, a good antivirus on the machines from which we'll be uploading information on the server. Then updated softwares are to be used on the server, which are using to run, which are being used to run your website. Then we must have a regular backup of your website, because no one in the world will give an guarantee, and 100% guarantee that your website cannot be hacked. So we can only take measures. So having
backup of correct information is always good. Then having strong passwords, and again there are some monitoring tools which will do the task of checking your website on the day-to-day basis, whether it is hacked or it is running smoothly. So these are some tools, sir, which we can use to keep the website safe. And then, so what is to end up to summarize on security? What are the advantages of this Right. security? Right. To name a few, it gives us an confidence that even though my website is not in front of me, I can tell anyone that you go on this URL and you can find the correct information. Why can I say this is because I know that I have taken care of all the security measures. So whatever information I have uploaded is visible for the end user. So this is one, it gives you the confidence, it gives you a good brand image in the market. So these are the things which are indirectly affecting your brand image. It is affecting your admission, and it is affecting your image, right? And it also gives an advantage, added advantage in the SEO part. If you have an SSL certificate installed, if you have SiteLock installed, it gives you an added advantage in SEO, so that you are always better in competition Two in finding out questions the I result. hear, Amit, now. Mhm. One is, what is the cost of this security? Is it very expensive? So this is one question that will always come in India. What is the cost? Now Right. you may make a mention saying that, if it gets hacked, then what is the cost? But then otherwise, what is the cost? This is I mean to say, it is not the cost, it is the price that we Right. keep on talking about. What is the price? It's not the cost. It's practically not much, sir. It's like insurance. It's always better to have the insurance rather than facing the consequences of the something which we do not want to get into. Actually, we are talking about price versus value. Yes, yes, correct. The value of the So information is, there is no value. It is invaluable. No correct, value correct. added to it is invaluable. So an But SSL certificate would cost around 2 to 3,000 rupees a year, okay, and also there are some free certificates available. And for SiteLock, it again cost for it has limitations, and upper packages are also available. So this may not be the exact cost, but it again starts with 3,000 rupees a year, and it is uh, always better to have this. To give you an example, one college we knew that they had applied for NAC, they had submitted their URLs to NAC, and unfortunately, the website got hacked. Uh, so what happens in this case is that the URLs are not accessible to the NAC committee. So in these cases, it's better to have these tools. What they do is on the daily basis they'll check web pages and see whether they are running smoothly or they hacked. If they are hacked, they'll on their own they'll recover those issues. and this leads to something called as, what is SEO? Yes, yes. What is SEO? This is what comes to my mind. Sandeep is there, no? Sandeep and Amit, you can let me know what is SEO. Yes, sir. SEO means search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मीन्स आपकी जो वेबसाइट है उसकी क्वालिटी और आपके वेबसाइट पर जो विजिटर्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है. जैसे अमित सर ने बताया कि 2019 में 1.49 बिलियन वेबसाइट्स थे. तो हमारी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट जो है वो विजिटर्स को किस तरीके से विजिबल होगी, क्योंकि हर साल इतने वेबसाइट्स आती है. तो एसईओ आपको जो है आपकी वेबसाइट जो है वो विजिटर्स तक पहुंचाने के लिए मदद करता है. तो एसईओ से हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारे वेबसाइट पर जो क्वालिटी है वेबसाइट की वो बढ़ती है, जिसे हम वेबसाइट की रैंकिंग कहते हैं. जो कि वेबसाइट के जो हम कुछ भी रिजल्ट सर्च इंजन पर सर्च करते हैं तो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उस पे हमारी वेबसाइट टॉप पे लाने में वो मदद करता है एसईओ.
सर वो फ्री है कि उनके लिए कुछ अमाउंट लगता है ये SEO करने के लिए? Sir, there are two things here. Okay. There is on-page SEO and off-page SEO. So on-page SEO, your vendor can do it. It is one-time activity. Okay. For off-page SEO, it is a continuous activity, and it is more of recommended to the commercial organizations. So one-time cost is how much, sir? So it can be covered in the development itself. It depends on how many pages you have, but you can request your vendors to have this done. Okay. The on-page at least. So we already purchased that domain, that edu.in. So based on that, we design the website also. So around 100 pages are there. Correct. For website. So it can be accommodated in the development cost. So that's what I'm saying. It may differ with respect to the vendor because it is a time-based activity. So whatever your vendor has their hourly cost, it will change according to that. Okay, sir. Okay, thank you. How does it affect our page load time? Amit? Right, sir. So page load time actually affects your SEO ranking because we have a really short span of interest nowadays. So having a fast website is really important. Otherwise, your user might think that this website is not loading and they'll just bounce off your website. So this also increases the bounce rate, which also decreases your SEO ranking. That is Google ranking. Google has ranked each and every website that is there on the internet. And what are good rankings over there? Primarily. So good ranking should be your website should load in 3 to 5 seconds. Your homepage should load in that amount of time. And is there any Google charge you anything in case you are slow or something of that sort? They have a funny name that is in Google Panda penalties there. Okay. That's how they de-rank your website. Achha. It's not costing you money, but it's costing you your face. So indirectly, it is costing money because more better rank you have, you'll receive more inquiries, more visitors. So. Okay. Now, I would like to come to Ganesham primarily. Ganesham is associated with the marketing of the websites. And every time he has those questions, how should a website be? Ganesham, I'd like to know how should a college website be? Yes, sir. How should a college website be? Yes, college We website. keep on talking about websites so many times. How should it be? As a website designer and as the demand that comes from the college. जैसे सर अभी स्टार्टिंग में आपने बोल दिया है, यस आईपीएससी का जो आईपीएससी कोऑर्डिनेटर जो है उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात चीज है, वेबसाइट किस तरीके से कॉलेज के लिए बना के लेना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेबसाइट में, और किस तरीके से होनी चाहिए इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे सर, जैसे अभी आपने बोला उस तरीके से. यस Yes, go ahead. यस सर. यस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट नेक के 7 क्राइटेरिया के हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए. एक्चुअली 7 क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जुलाई 2017 में एक नेक की फ्रेमवर्क लॉन्च हुई. उसमें वहाँ पे उस फ्रेमवर्क में लॉन्च किया गया कि 70% ऑनलाइन इवोल्यूशन, 30% नेक पेयर जजमेंट टीम. ये जो रेशियो लॉन्च होने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे पोर्टल पे आ गई, हमारी वेबसाइट पे आ गई, तो किस तरीके से होना चाहिए आज वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे कॉलेज का फीडबैक जो सिस्टम है किस तरीके से होना चाहिए. उसके बाद SSS जो सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से होना चाहिए, वो आज हम देखने वाले हैं एज पर नेक अपडेटेड फ्रेमवर्क के हिसाब से. उसके बाद अकाउंटेबल फीडबैक सिस्टम, उसमें टीचर फीडबैक सिस्टम, एल्यूमिनिया फीडबैक सिस्टम, एम्प्लॉयर फीडबैक सिस्टम, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे.
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है एल्यूमिनिया रजिस्ट्रेशन, या अभी नया कंसेप्ट आया कि एल्यूमिनिया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, उसका फॉर्म किस तरीके से है, उसके जो नैक के नए फ्रेमवर्क के हिसाब से कई फॉर्मेट्स भी आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो चीजें हैं ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एग्जाम, ये वेबसाइट का पार्ट है, तो यही सिस्टम में हम दिखाएंगे और बाद में हम Q&A सेशन के लिए जाएंगे। तो सर हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुई है जुलाई 2017 में, उसमें 70% जो है सिस्टम जनरेटेड स्कोर और उसका कॉम्बिनेशन 30% के साथ है पीयर टाइम जजमेंट। अभी 70% जो ऑनलाइन इवोल्यूशन का जो सिस्टम है किस तरीके से हमारे पोर्टल पे शो करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ से मैं हमें से जानना चाहूंगा कि ये वेबसाइट से स्टार्ट जो डोमेन, होस्टिंग और ईमेल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस हो जाए। यस आमिर प्लीज। Sure, Ranjan. So for website to be live, we need basically two things. One is the domain name and another is hosting, right? So they both of them have to be connected. So suppose I'm calling xyz.com. So it is on the backend, it is connecting to a server and showing us the files of the website. So the domain name is, and technically it is known as TLD. So we recommend educational institutions to go for edu.in or ac.in because they can be only acquired by educational institutions. Private organizations or individuals cannot have these TLDs. And another important aspect is that institutions must have ownership of these domain names. Otherwise, suppose tomorrow if you decide to change the vendor of your website, and if you do not know the login credentials of your domain name, then this becomes a tricky business because these activities of going website live at the time of examinations or some accreditation, they are time bound, right? So ownership is really important. So an IQAC coordinator must know what are my domain login credentials, what are my hosting login credentials, uh, and there are some aspects like which server to go on, but your vendors can always help you in that, but having those login credentials with you is really important. Yes, thank you. यस हम आगे जाएंगे। यस वेबसाइट किस तरीके से होना चाहिए, उसका डोमेन किस तरीके से होना चाहिए, उसमें हम डिस्कस करिए। उसके बाद में एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर में वेबसाइट के बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर उसमें से मेजरली स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट, ये दो ही टाइप यूज किए जाते हैं। एक्चुअली स्टैटिक वेबसाइट मीन्स क्या है और डायनामिक वेबसाइट मीन्स क्या है? यस स्टैटिक वेबसाइट मीन्स जो वेबसाइट हम खुद हमारे एंड से कुछ भी उसमें अपडेट नहीं कर सकते, दिस इज द स्टैटिक वेबसाइट। और डायनामिक वेबसाइट हम हमारे कॉलेज में हमारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द पर्सन्स, एवरी जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो एचओडीज है, वो हर एक चीज जैसे कि एग्जाम डिपार्टमेंट हो, कल्चर एक्टिविटी डिपार्टमेंट हो या व्हाटएवर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हर एक चीज उनके एंगल से एंड से चेंज होती जाए, तो दिस इज द डायनामिक वेबसाइट। आगे हम देखेंगे उस डायनामिक वेबसाइट में किस तरीके से अलग अलग टाइप से शोकेस किया गया है और वो नेट ने भी किस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमें बोल दिया है। हम उसके पहले यहाँ पे देखेंगे कॉलेज का जो पोर्टल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। यस आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग होम पेज के हैंड साइड में आपको कॉलेज का लोगो दिख रहा है, उसके कलर कॉम्बिनेशन हिसाब से हमारे कॉलेज की जो कलर कॉम्बिनेशन थीम्स है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में राइट हैंड साइड को कॉलेज के जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो यहाँ पे हमने शोकेस किया है, और कॉलेज का जो नेम है वो मिडिल में हमें शो करेंगे, और वहाँ पे हमारा नेक का जो लास्ट टाइम का जो सीजीपीए या ग्रेड है वो यहाँ पे शोकेस करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पे आपको बैनर इमेजेस दिख रही है। यस हमारे कॉलेज की जो यूएसपीज है, स्पेशलिटी है, वहाँ पे हम इमेजेस के थ्रू शो करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विजन, मिशन, एक्रेडिटेशन और जो भी हमारी रैंकिंग है वो यहाँ पे शोकेस करेंगे। जैसे भी मैंने अभी बोल दिया कि हमारा जो डायनामिक कंसेप्ट है, यस यहाँ पे आपको दिख रहा है अपकमिंग इवेंट्स, या हमारे कॉलेज के जो डिपार्टमेंट है जिस तरीके से उनके इवेंट्स आने वाले वो खुद यहाँ पे अपडेट कर सके। उसके बाद में नोटिस बोर्ड और न्यूज अनाउंसमेंट। उसके बाद में क्राइटेरिया नंबर 1 में जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यहाँ पे हमने होम पेज पे फ्रंट व्यू में शोकेस करने की कोशिश की है। यस एकेडमिक कैलेंडर के बारे में हम थोड़ा सा पीयूष सर से जानना चाहेंगे। यस सर एकेडमिक कैलेंडर में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दिए तो बहुत अच्छा रहेगा सर प्लीज।
Yes, academic calendar really plays a very important role. We think so that we know how to prepare an academic calendar, but an academic calendar is much more complex. Academic calendar is made up of multiple steps. Academic calendar cannot be made until and unless we get the dates of the new term. And therefore, the first level of academic calendar is the university academic calendar. It is a part of our academic calendar because we make it a part of our academic calendar. And you know that university gives us dates, term beginning dates, term ending dates, and holidays. ये दो बातें वो देते हैं normally. So looking at these aspects, when you prefer to prepare academic calendar, then we go for preparation of an academic calendar at college level. And while preparing an academic calendar at college level, this academic calendar should be prepared by 3 people first: the principal, the IQAC coordinator, and the exam CEO or the exam coordinator. Why exam coordinator? Because exam coordinator is going to give us the dates of internal examinations. So when the dates of internal examinations are given, in the next level, that is in the second level, which is the college level, you are able to see introduction of the dates of examinations, internal examinations. एक बार अगर इंटरनल एग्जामिनेशन उसके अंदर आ गई तो इसका मतलब ये है कि द टीचर्स आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द academics is to be dealt with. Second part happens to be while preparing an academic calendar, we often make one big mistake, and that happens to be we also put meetings into it. We put a variety of things into that academic calendar. Academic calendar is always user centric, stakeholder centric. The academic calendar to be displayed is for the students. So all those dates that relate and events that relate to the student should be seen in the academic calendar. That means so, when are the examination dates, when the term begins, when teaching begins, when teaching completes, all the main events, all that will come into the academic calendar, which is for the students. There will be a different academic calendar for the teachers. There will be a different academic calendar for the administrative staff. And there will be a different academic calendar for the IQAC. That makes it an IQAC calendar where all these things are going to come in together. Second part happens to be that the academic calendar, once it is made, it must be followed. नहीं तो बनाने के लिए बना दिया है तो उसको कोई मतलब नहीं है. All over the world, academic calendar is a very serious business. The way it is prepared is the way you have to follow. Some people who are going to get involved into academic calendar, people I mean to say some staff members who are going to get, they are going to closely watch that academic calendar. Any changes, any problems that are being faced, they will be eliminated either that time or in the next cycle. There should be minimum changes in the students' calendar because it's a very big number. And unless we have a good functional academic calendar, things don't work. And therefore, working with an academic calendar, preparing a good academic calendar is not just a responsibility of those 3 people. After they have prepared it, slowly the departments come into the picture, after which the teachers come into the picture. The academic calendar should be linked to the teaching plan. If it is not linked to the teaching plan, it does not make any sense. Otherwise, the teacher says, I had planned this and today there is an activity. Because if the academic calendar is not working then properly, then in that case, the teaching plan gets hampered. And therefore, an academic calendar needs to be prepared very carefully. It must have the participation of everyone.
Once the three people, that is the exam coordinator, IQAC and principal, have decided on some dates, it then further goes to all the departments, to all the teachers, and their valid suggestions are incorporated, and then the final academic calendar is made. Following the academic calendar and almost up to 80%, that would mean that it's a great organization. In Indian scenario, most academic calendars do not function beyond 60 to 65%. Some best organizations are able to take it beyond 75%. So academic calendar really plays an important role, Ghanshyam, and that academic calendar should be a part of your website. यस सर, थैंक यू। यस, जिस तरीके से सर ने बोले कि एकेडमिक कैलेंडर कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कितना आईपीएससी कोऑर्डिनेटर के और बाकी जो चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो वो फर्स्ट फेज में जो हमारे वेबसाइट का होम पेज है वहाँ पे हमने शोकेस करना है। उसके बाद सेकेंड जो फेज है उसमें डायरेक्टर डेस्क, प्रिंसिपल डेस्क, लाइब्रेरी, इंक्वायरी फॉर्म एंड जो क्राइटेरिया 7 में जो 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारी मैंडेटरी है वो यहाँ पे हमने शोकेस किया। उसके बाद वीडियो गैलरी, फोटो गैलरी। वीडियो गैलरी का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने यूट्यूब की लिंक मर्ज की है। यस, उसका एक रीजन है, जैसे अभी एसीओ के बारे में अमित ने और संदीप ने बोल दिया, हमारा जो वेबसाइट का लोड टाइम है वो कम होना चाहिए, मीन्स 7 सेकेंड से कम होना चाहिए, तो हमारा जो रैंकिंग है टॉप पे आ जाता है। तो यूट्यूब की लिंक की वजह से हमारी साइट जो ऑन होती है तो इमीडिएटली ओपन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोड के लिए डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना पड़ता है, तो वहाँ का इंटरकनेक्शन रहता है, तो हमारी साइट को लोड नहीं हो जाता। तो उसके बाद में फोटो गैलरी, यहाँ पे फोटो गैलरी विद कैप्शन हमें शोकेस करना है, कौन सा इवेंट है, किस के लिए किया था या इसके डिटेल्स वहाँ पे। इन केस हमारे वहाँ पे जियो टैग सिस्टम के जो फोटोग्राफ्स हो तो अच्छे हैं, क्योंकि अभी नैक ने कुछ इवेंट के हमें जियो टैग सिस्टम के लिए मैंडेटरी किया है कि हमें इस तरीके से फोटो होने जरूरी है। तो ये सेकेंड फेज में आ जाता है होम पेज के। और थर्ड फेज में हमारे कॉलेज में हमारे यूएसपी क्या है, जैसे कि हमारे एनआर का रैंकिंग किस तरीके से है वो यहाँ पे हमें शोकेस करना है। डिग्री विथ ऑनर्स प्रोग्राम, ई लर्निंग, प्लेसमेंट से व्हाटएवर, देखिए हमारे कॉलेज में क्या स्पेशल है तो यहाँ पे हमें फोकस शोकेस करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स एक्सप्लोर करना है, क्विक लिंक्स। तो इस तरीके से 3 फेज में हमने हमारा होम पेज स्ट्रक्चर शो करना है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे कॉलेज के बाकी जो मेन्यूज है वो किस तरीके से होने चाहिए वेबसाइट के। यस, अबाउट कॉलेज के अंदर में आ जाएगा हिस्ट्री, कैंपस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, अवार्ड, प्रिंसिपल डेस्क, प्रेसिडेंट डेस्क, मैनेजमेंट बॉडी और बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब कुछ आ जाएगा अबाउट कॉलेज के हेड के अंदर। उसके बाद में डिपार्टमेंट, यस हमारे कॉलेज में जितने डिपार्टमेंट्स है जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, व्हाटएवर जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे हमें शोकेस करना है। उसके बाद में उस डिपार्टमेंट के हेड के अंडर उसके सिलेबस, उसके जो हेड ऑफ द, फॉर एग्जांपल आर्ट्स कॉमर्स है उसमें बीए आ गया तो उसके एचओडीज कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, फिर उनके डिटेल्स, उनकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आ जाएगा डिपार्टमेंट हेड के अंडर। उसके बाद में एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कॉलेज का जो प्लान है वो यहाँ पे हमें दिखाना है। यस, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, एग्जामिनेशन डिटेल, उसकी प्रोसीजर, प्रोग्राम आउटकम्स, इवेंट प्रोग्राम, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये टोटल आ जाएगा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर। उसके बाद में एडमिशन, यस एडमिशन टैब के अंदर आ जाएगा एडमिशन प्रोसीजर हमारी किस तरीके से है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सिस्टम हमें यहाँ पे शोकेस करना है विद पेमेंट गेटवे सिस्टम। इन केस हमारा ऑफलाइन सिस्टम है तो ऑफलाइन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे शोकेस करना है। उसके साथ हमें एडमिशन की हमारी जो कमिटी है वो यहाँ पे हमें शोकेस करनी है। तो ये सब कुछ आ जाएगा एडमिशन हेड के अंदर। एडमिशन के बाद में आ जाता है स्टूडेंट कॉर्नर। यस, स्टूडेंट कॉर्नर हेड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, स्टूडेंट ग्रीवियंसेस, ये हमें मुंबई विद्यापीठ में हमें मैंडेटरी किया और नैक ने भी दिया है, तो स्टूडेंट ग्रीवियंस सिस्टम हमें शोकेस करनी है। उसके बाद एनएसएस, एनसीसी, जिमखाना, स्टूडेंट काउंसिल, कल्चर एक्टिविटीज, एनहांसमेंट डेवलपमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स, मतलब हमारे स्टूडेंट के लिए हम जो जो कॉलेज में एक्टिविटी या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, ये सब कुछ स्टूडेंट कॉर्नर के हेड के अंदर आनी जरूरी है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल्स इंफॉर्मेशन। जुलाई 2017 बिफोर हम
हमारे कॉलेज की जो इंफॉर्मेशन है स्टाफ की, नेम, क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन, इतना ही देते थे। मगर अभी हमें नेक को इन डिटेल में सब कुछ इंफॉर्मेशन देना है। मतलब हमारे स्टाफ की पीएचडी किसमें है, उनके डॉक्टर जिसमें हुए, उसके रिसर्च पेपर, वो पब्लिकेशन कौन सा है, मीन्स इन डीप डिटेल इंफॉर्मेशन, बायोडाटा, सीवी हमें यहाँ पे शो करने हैं। तो ये सब कुछ आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स हेड के अंडर। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टैब है, नेक ऑब्लिक आईक्यूएस। यस, नेक ऑब्लिक आईक्यूएस हेड के अंदर किस तरीके से हमें शोकेस करना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहला पॉइंट है AQRs, लास्ट 5 इयर्स के AQRs हमें शोकेस करना है। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग, पर्सपेक्टिव प्लान, एकेडमिक कैलेंडर, कमिटीज के अंदर IQAC कमेटी, NSS, वुमेन सेल, अदर जितनी कमिटीज है उसके लिस्ट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज। उसके बाद में हमें IQAC जो एक्टिविटीज है अभी अलग तरीके से उन्होंने दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए बोलते हैं। यस, ईयर वाइज में हमें ट्रेनिंग, प्लानिंग, फीडबैक, ट्रिपल ए ऑडिट फाइनल ईयर का, और उसके बाद में पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमें शोकेस करना है। इन केस हमारी इसके पहले साइकिल हुई होगी तो उसका हमें जो भी ग्रेड सर्टिफिकेट है वो डिटेल्स, और पीयर टीम की जो डिटेल्स आए हैं उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें शोकेस करना है। मैं यहाँ पे नेक के हेड के अंदर के बारे में मिस्टर पीयूष सर से जानना चाहूंगा कि सर और किस तरीके से हमें जो चीजें हैं नेक के हेड के अंदर शोकेस करना चाहिए, प्लीज सर। एक तो the big part happens to be whatever we upload in AQR, उसके सारे supports अभी we have to see to it that they come on the website. For example, I make a mention under 1.1.1 that yes, the institution is highly organized with respect to its teaching methodologies and something. Departmental planning के हिसाब से, so what all document do you have that needs to be updated on the website? All the data that you are going to give to NAC must be kept on the website. It would mean that this data is to remain on the website for the next few years till we undergo the process of NAC. This is one data uploading. Also, the data that you are going to put up, it must be available over there. And so it's not only the data, it could be the link which you are going to give. So it must open up over there. This is one more aspect that we are able to see. Then a variety of activities that we take, especially when we talk of criteria 5. For example, we are going to talk about the events that are being conducted under criteria 5, or the physical infrastructure that we are talking about. It must be geotagged. Geotagging is a way by which you are going to tell that this is this particular, let us say, ground, our college ground. If I am taking a photograph of that college ground, then in that case, I am going to also tell where is this ground present, that is its location. So by keeping the internet on, we are going to take the photograph through an app which is called as the geotagging app. There are multiple geotagging apps available on our mobile. Best quality cameras now have geotagging apps. So if you keep the geotag open, then in that case it tells you about the location of the particular place. So it tells you about latitude and longitude. This is one part. Second part, it tells you about day, date and time. It also comes over there. And the third part happens to be a blank part where you are going to write down whatever you feel like writing. For example, this is college ground, or this is football ground, or this is a classroom which is having the necessary technology, digital technology. So you have to give them the number of the classroom. This comes in criteria 4. Or when we are talking about some kind of activities that are being conducted in criteria 5, yoga, for example, उसका जब हम फोटो लेंगे तब ये कितने बजे लिया गया था ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहाँ लिया था ये आ जाएगा, कब लिया था ये आ जाएगा.
And then we are going to write down this is an activity of yoga for 100 girl students from this week to this, from this time date to this date. This documentation plays a very important role, and some of these documents that are vital, they need to come on the website. So with this, then what are the compliances that NAAC has given you? How many of you have of them have been completed, and with what earliness have they been completed? That also needs to be represented. NAAC has a huge amount of data to be provided, and the better the compliance with NAAC, that means better is the website. So an updated website on one side and a data with relevant and a website with relevant information makes your website a NAAC relevant website. I think so, Ghanashyam, this is sufficient to make a mention of. Yes sir, thank you. यस जिस तरीके से NAAC के हेड के अंदर किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है सर ने बोल दिया, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें लागू हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे अभी जो नया सिस्टम है DVV का, डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हमें 1 to 7 क्राइटेरिया का शोकेस किस तरीके से करना है, हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमारी है यहाँ पे हमें शोकेस करना है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से लेके 7.1, 7.2, 7.3 तक हमें इन डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है DVV के अंदर। उसके बाद में आगे जाते हैं हम लाइब्रेरी। यस, लाइब्रेरी हेड के अंदर हमारे अबाउट लाइब्रेरी में हमारे लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लाइब्रेरियन के डिटेल्स आ जाएंगे, उसका CV, फोटो सब कुछ आएगा। उसके बाद में लाइब्रेरी ब्लॉग हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। देन लिस्ट ऑफ द डाटाबेस बुक्स, हमारे कॉलेज में कितनी बुक्स है उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। और लाइब्रेरी की अलग तरीके से फोटो गैलरी हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। इन केस हमारे पास ऑनलाइन का कुछ लाइब्रेरी के रिलेटेड सिस्टम यूज कर रहे होंगे, इन केस ओपैक हो तो वहां पे हमें उसका सिस्टम इंटीग्रेट करके शोकेस करना है। तो ये सब कुछ आ जाएगा हमारे लाइब्रेरी के हेड के अंदर। उसके बाद में रिसर्च एंड पब्लिकेशन। यस, रिसर्च एंड पब्लिकेशन हेड के अंदर रिसर्च कमेटी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च पॉलिसी, एनुअल रिसर्च मीट रिपोर्ट, देन कोड ऑफ एथिक्स, ये सब कुछ आ जाएगा हमारे R&D डिपार्टमेंट। इन केस हमारे पास रिसर्च एंड पब्लिकेशन हेड डिपार्टमेंट नहीं है तो हम हमारे जो PhD डॉक्टर पर्सन्स हैं उनके रिसर्च पेपर हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। ये आ जाएगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन हेड के अंदर। उसके बाद में फीडबैक सिस्टम। यस, स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम, टीचर फीडबैक सिस्टम, एल्यूमिनी फीडबैक सिस्टम, एम्प्लॉयर फीडबैक सिस्टम, अलग अलग तरीके से वेरियस वेब सॉल्यूशंस हम यहाँ पे NAAC के अप्लायंस के हिसाब से कौन से हम देखेंगे। यस, स्टूडेंट ग्रीवेंस सिस्टम, तकरार निवारण केंद्र, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे सिस्टम, SSS सिस्टम के 21 क्वेश्चन जो है किस तरीके से हम हमारे स्टूडेंट से इवैल्यूएट करके सिस्टम थ्रू किस तरीके से लेंगे ये हम देखेंगे। एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे अभी हमने बात की फीडबैक सिस्टम, स्टूडेंट फीडबैक, एल्यूमिनी टीचर, और अभी जो नया आया है पेरेंट रिप्लेस होके एम्प्लॉयर फीडबैक सिस्टम। और उसके बाद में हम देखेंगे ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम और ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। यस, ये एडमिन पैनल हमारे कॉलेज की तरफ रहेगा। इन केस हमारा जो रिपोर्ट्स है व्हाटएवर अभी जैसे SSS या फीडबैक सिस्टम हो, एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन, जिस तरीके से हम स्टूडेंट से हमारे सिस्टम सबमिट करवा के लेते हैं तो हमारे कॉलेज के पास इमीडिएटली इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगा। इसका हम PDF में या JPG में डाउनलोड करके हम हमारे NAAC के टीम को उसका रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं या रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जो सर्विसेज है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, स्टूडेंट और एडमिन पैनल, उसके बाद अकाउंटेबल फीडबैक सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एग्जाम, एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड स्टूडेंट ग्रीवेंस। मैं संदीप को रिक्वेस्ट करता इस सिस्टम प्लीज हैंड ओवर टू संदीप। थैंक यू। My screen is visible, sir? Yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी जैसे वेबसाइट में सर ने बताया कि 70% इवैल्यूएशन में क्या क्या होना चाहिए, उसी में से सिस्टम है एक SSS फीडबैक सिस्टम,
जिसे हम स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे सिस्टम कहते हैं। इसमें स्टूडेंट पैनल किस तरीके से रहेगा, स्टूडेंट किस तरीके से अपने फीडबैक सबमिट करेंगे, और एडमिन का क्या क्या काम रहेगा, एडमिन किस तरीके से जो सभी क्वेश्चंस है या फिर एनालिसिस किस तरीके से देखेंगे, मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एंट्री जब तक हमारे कॉलेज के सिस्टम में नहीं होती है तब तक वो स्टूडेंट अपना यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक चीज ये है कि आप यहाँ पर 3 फील्ड देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए। एक है इंटर रजिस्टर ईमेल आईडी, मतलब जो स्टूडेंट का ईमेल आईडी है वो हमारे कॉलेज के जो भी सिस्टम है हमारी उस सिस्टम में रजिस्टर होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी वहीं पे रजिस्टर होना चाहिए। और जो इंटर पासवर्ड है, ये पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड रहेगा, जो कि ये पासवर्ड इस स्टूडेंट के मेल आईडी पर चला जाएगा। ये पासवर्ड ना स्टूडेंट का मतलब बना सकता है ना हमारे एडमिन बना सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड रहेगा और उसके मेल आईडी पर चला जाएगा। जब तक ये पासवर्ड इस स्टूडेंट को नहीं मिलता तब तक वो स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता और अपना फीडबैक सबमिट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं मुझे यहाँ पर अभी फीडबैक देना है आपके कॉलेज के लिए, तो मुझे पहले मेरी एंट्री आपके कॉलेज में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से हमारे एडमिन जो है, हमारे एडमिन यहाँ से स्टूडेंट्स की एंट्री करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे तो मल्टीपल स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हैं, और आपके पास सिंगल स्टूडेंट है तो आप 1 बाय 1 उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। सर ये MIS टाइप वर्क करता है क्या, लाइक MIS? हेलो हाँ सर, MIS बोल सकते, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई एम नॉट श्योर whether it is directly connected to that, but our students will be added in the system and because some institute did same way, like Institute of Chemical Technology Matunga, they did all the process, thesis submission, enrollment, online application, everything is online. No, that system is not yet ready with us, sir. Okay, okay. हेलो, इस तरीके से जो एडमिन जो स्टूडेंट है अपना यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसे जो फीडबैक फॉर्म है वो उसे शो होगा, जो कि नैक की तरफ से 21 क्वेश्चंस आते हैं। वो सभी क्वेश्चंस अपनी तरफ से वो सभी क्वेश्चन आंसर करेगा। आंसर करने के बाद जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस जिस तरीके से श्याम सर ने अभी यहाँ पर दिखाया था अपने इस स्लाइड में, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर आप देख ये जो एनालिसिस है वो डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है PNG, JPG, PDF फॉर्मेट में, तो इस तरीके से ग्राफिकली आप डाउनलोड भी करा सकते हैं, जो कि नैक के लिए आपको सबमिट करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हमारे जो एडमिन है वो सभी क्वेश्चंस जो है वो मैनेज कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस
यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो भी ऑप्शंस है वो सभी ऑप्शंस यहाँ से ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अपडेट करना है, आपके एडमिन को अपडेट करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस चेंज करने हैं, तो सभी क्वेश्चंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करेंगे और यहाँ पर सभी उसके ऑप्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन डिलीट करना है तो आप यहाँ से क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं। ट्रिपल एस में अभी हम जो फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स का, वो फीडबैक हम कोर्स वाइज लेते हैं और उसका उस कोर्स कौन सा है और उसका स्टार्टिंग ईयर क्या है और एंडिंग ईयर क्या है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जाके जो एडमिन है हमारे, वो हमारे कॉलेज के जितने भी कोर्सेस है वो सभी कोर्सेस मैनेज करेंगे। जितने भी कोर्सेस है वो भी कोर्सेस आप यहाँ से ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको उन स्टूडेंट के स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर आपको एडिट करने हैं, अपडेट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे ट्रिपल एस फीडबैक सिस्टम है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनकी एंट्री हमारे कॉलेज के सिस्टम में नहीं होती तब तक वो स्टूडेंट यहाँ से लॉग इन नहीं कर सकता। उसको ये सभी जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसे उसके मेल आईडी पर मिलने के बाद ही वो यहाँ से लॉग इन करेगा। उसके बाद जो उसने फीडबैक्स दिए है उसका जो एनालिसिस है उस तरीके से ग्राफिकली जनरेट होगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे एडमिन सभी क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक फीडबैक सिस्टम है, जिसे अकाउंटेबल फीडबैक सिस्टम है। ये सिस्टम भी सेम रहेगी। जब तक स्टूडेंट्स की एंट्री हमारे कॉलेज के सिस्टम में नहीं रहेगी तब तक ये जो स्टूडेंट्स है वो अपना फीडबैक सबमिट नहीं कर सकते। अभी अकाउंटेबल फीडबैक जो है वो हमने पीयूष पहाड़े सर के गाइडेंस से ही बनाई है। तो हमारे साथ पीयूष पहाड़े सर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके बारे में इन डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। Yes, Pahade. Actually, Sandeep, we can request sir after your presentation. He has disconnected, I see, but he will be joining back in about 10 minutes. So you can continue with the demo. Sir can talk about this later. Okay. So after we discuss about online exam system, सो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम में यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक है स्टूडेंट पैनल और दूसरा है एडमिन पैनल। सो सबसे पहले स्टूडेंट को अगर एग्जाम देनी है तो उसे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें उसका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर अपना ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद ये सभी डिटेल्स हमारे एडमिन के पास जाएगी, जो भी एग्जाम के एडमिन रहेंगे उनके पास जाएगी। वहां से उन्हें अप्रूवल आने के बाद वो स्टूडेंट यहाँ से अपना लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद जिस स्ट्रीम में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स यहाँ पर क्रिएट होगी, सेट की होगी कॉलेज की तरफ से, तो वो उसे यहाँ पर दिखाएगी। अगर फुल सिलेबस की टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होगी तो फुल सिलेबस की टेस्ट उसे यहाँ पर दिखेगी। अगर वो प्रैक्टिस एग्जाम देना चाहता है तो यहाँ से वो डेमो एग्जाम दे सकता है, प्रैक्टिस एग्जाम दे सकता है। सपोज मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, जिस सब्जेक्ट की मुझे एग्जाम देनी है, तो यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उस एग्जाम का नाम क्या है तो वो मुझे यहाँ पर शो होगा, जितने भी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम रहेगी उसका। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एग्जाम देने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी एग्जाम्स के लिए इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो मुझे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखेंगे कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है या नहीं है, अगर नेगेटिव सिस्टम है तो उसके लिए कितने मार्क्स उसके माइनस हो गए, सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद जो एग्जाम है वो मुझे यहाँ पर उस स्टूडेंट को दिखाई देगी। यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस दिखेंगे और उसके साथ ही जो एग्जाम का टाइम दिया हुआ है कॉलेज ने वो यहाँ पर उसे दिखाई देगा। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। सो 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है स्टूडेंट, या फिर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, उसे जितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन को रैंडमली सिलेक्ट करके अपने आंसर यहाँ पर दे सकता है। जितने क्वेश्चंस उसने दिए हैं, आंसर दिए हैं, वो सभी यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। जितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहे। अभी जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं मैं अपने टेस्ट यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे एक छोटा सा रिजल्ट भी स्टूडेंट्स को शो होगा कि टोटल कितने मार्क्स के लिए एग्जाम थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, कितने क्वेश्चंस के आंसर उसने नहीं दिए हैं, आंसर्ड क्वेश्चंस कितने हैं, राइट आंसर्स कितने हैं, रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, और उसके डिडक्टेड मार्क्स कितने हैं, और उसके जो परसेंटेज आए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर कितने हैं। इन डिटेल में अगर उसे रिजल्ट देखना है, उस लेसन वाइज अगर रिजल्ट देखना है तो यहाँ से देख सकता है। साथ ही साथ में जो टेस्ट उसने दिए हैं उस टेस्ट में से जो उसका परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, वो भी यहाँ पर वो
देख सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने यहाँ पर लेसन वाइज जो लेसन जितने भी उस टेस्ट में क्वेश्चंस थे लेसन वाइज, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से थे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट को एक आंसर शीट भी शो होगी, जिसमें जो आंसर्स है सभी आंसर्स उसको शो होंगे आफ्टर सबमिट द टेस्ट। तो अगर उसने किसी क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए हैं तो उसको इस तरीके से हाईलाइट भी होगा उसी में, मतलब वो जो भी टेस्ट उसने सबमिट किए है उसके बाद वो चेक कर सकता है कि उसके जो आंसर्स थे वो कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आंसर शीट उसकी दिख रही है। तो उसने कितने जितने भी एग्जाम दिए है सभी के रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे उसके अकाउंट पर। अब हम एडमिन पैनल देखेंगे, एडमिन का क्या वर्क रहेगा। हमारे जो एडमिन है अपने सारे डिटेल्स मतलब लॉगिन डिटेल्स ऐड करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की एंट्री आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है। मतलब क्या है कि जब तक यहाँ से आपके एडमिन सभी स्टूडेंट्स को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक वो स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते अपने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमें जितने भी स्टूडेंट्स है वो सभी को एक्टिव करना है, तभी वो उनके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स देखनी है, सभी स्टूडेंट्स की अगर डिटेल्स देखनी है तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आपको यहाँ पर शो होंगे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद उस स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उस स्टूडेंट्स की डिटेल दिखाई देगी, उसका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। उसके बाद अब तक उसने कितने एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं और कितने एग्जाम्स नॉट अटेम्प्टेड है वो उसे यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमें उन स्टूडेंट का जितने भी टेस्ट उन्होंने दिए हैं उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि उसने जो टेस्ट दिए उसका नाम क्या था, उसमें उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे, राइट आंसर्स कितने दिए हैं, रॉन्ग आंसर्स कितने दिए हैं, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं और उसके परसेंटेज कितने आए हैं। तो जितने भी उसने टेस्ट अब तक दिए हैं वो सभी का रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट वाइज। नेक्स्ट है आपके कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ से ऐड सब्जेक्ट करेंगे। दूसरी एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने लॉगिन किया था तो मुझे वहां पर 3 सब्जेक्ट ही दिख रहे थे। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स का स्टेटस है वो इनएक्टिव है और एक्टिव है। मतलब क्या, जब तक यहाँ से हमारे एडमिन जो भी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट की टेस्ट उस स्टूडेंट को दिखानी है, जब तक हम यहाँ से एक्टिव नहीं करेंगे तब तक उस स्टूडेंट को वो उस सब्जेक्ट की एग्जाम शो नहीं होगी। इसके लिए जिस सब्जेक्ट की टेस्ट है, जिस सब्जेक्ट की एग्जाम्स हमने क्रिएट किए हैं, उन सब्जेक्ट्स को हमें एक्टिव करना जरूरी है, तभी उस स्टूडेंट को वहां पर वो दिखाई देगी और तभी वो स्टूडेंट वहां से सिलेक्ट करके अपने एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऐड करने के बाद हमें सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स है वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर्स पर क्लिक करने के बाद जो सब्जेक्ट हमने अभी ऐड किया था वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है उस चैप्टर का नेम यहाँ पर हम ऐड करके ऐड चैप्टर करेंगे। अगर चैप्टर एडिट करना है तो वो भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन सेट है, मतलब वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट 1 नाम दिख रहा था हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद, तो हम यहाँ से सब्जेक्ट जो सेट है वो क्रिएट करेंगे, मतलब एग्जाम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम का नाम है वो ऐड करेंगे, जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, जो भी नेम है वो एग्जाम का नेम सेलेक्ट करेंगे। उस एग्जाम के लिए कितना टाइम देना है वो टाइम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट की हमें टेस्ट करनी है वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें फुल सिलेबस की टेस्ट करनी है, फुल सिलेबस की टेस्ट लेनी है, तो हम यहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग सिस्टम है तो कितने मार्क्स निगेटिव देने हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव क्वेश्चन सेट, मतलब क्या, जैसे हम सब्जेक्ट्स को एक्टिव करते थे सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन सेट को हमें एक्टिव करना है। मतलब 2 दिन बाद एग्जाम है, हमने अभी से क्वेश्चन सेट तैयार करके रखा है और 2 दिन बाद हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाना है। तो जब आप ये एक्टिव क्वेश्चन, मतलब ये जो चेक बॉक्स है, जब आप यहाँ से चेक करेंगे तभी ये क्वेश्चन सेट एक्टिव होगा और तभी उन स्टूडेंट को वहां पर शो होगा। जब तक आप ये चेक बॉक्स चेक नहीं करते, जब तक आप ये क्वेश्चन सेट एक्टिव नहीं करते, तब तक उन स्टूडेंट्स को ये जो एग्जाम है वो शो नहीं होगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आप सेट करने वाले हैं वो आपको एक्सेल शीट में रेडी करना है और वो एक्सेल शीट आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत नहीं है
और जो भी हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, मतलब एक्सेल शीट से जितने भी क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं, क्वेश्चन बैंक्स जो अपलोड किए हैं, उसका जो सेट है वो आप यहाँ से डायरेक्टली अटैच टू क्वेश्चन सेट में जाके यहाँ से क्वेश्चन सेट रेडी कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जो भी हमने क्वेश्चन सेट का नाम रेडी किया था वो क्वेश्चन सेट उसका सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस सब्जेक्ट के लिए हमने वो क्वेश्चन सेट रेडी किया था वो क्वेश्चन सेट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। और जो हमने क्वेश्चन हमने एक्सेल शीट्स के थ्रू हमने यहाँ पर अपलोड किए थे वो सभी क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे उस सब्जेक्ट वाइज, जो भी हमने यहाँ पर फिल्टर ऐड किया है उसके हिसाब से। तो भी मुझे ये क्वेश्चन ऐड करना है उस क्वेश्चन सेट में, ये करना है, ये दो नहीं करने, यहाँ से ये करना है। तो जितने भी आप क्वेश्चन है वो रैंडमली कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन सेट से डिलीट करने हैं, रिमूव करने हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन सेट से वो क्वेश्चन रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली एक्सेल शीट से डायरेक्टली अपलोड करके आप यहाँ से क्वेश्चन सेट अलग से रेडी करा सकते हैं। और यहाँ से क्रिएट सेट करने के बाद वो जो सेट क्रिएट किया था हमने उसमें ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे और जो हमने एक्टिव करेंगे जब वो क्वेश्चन सेट, तब वो उस स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे एडमिन यहाँ से सेटिंग्स में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 ऐड करना है टेस्ट के थ्रू, तो आप यहाँ से जो जिस सब्जेक्ट के लिए हमें टेस्ट क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो सब्जेक्ट ऐड करेंगे। उस सब्जेक्ट में से जो चैप्टर है उस चैप्टर के लिए हमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो चैप्टर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप करेंगे, यहाँ पर उसके ऑप्शंस ऐड करेंगे। उसके बाद जो आंसर शीट हमने दिखाई थी उस आंसर शीट के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि जो आंसर शीट है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाए। अगर आपको क्वेश्चंस इमेज फॉर्मेट में दिखाने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो इमेज फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऑप्शंस अगर आपको इमेज में देने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली इमेज में ऑप्शंस ऐड करवा सकते हैं और जो भी करेक्ट आंसर रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप इमेज फॉर्मेट में दे सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एग्जाम सिस्टम है वो है जिसमें आप क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं और स्टूडेंट अपने एग्जाम दे सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से अपना लॉगिन कर सके। तो जो नया स्टूडेंट्स है वो यहाँ से किस ईयर के लिए उन्हें एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करेंगे, किस कोर्स के लिए उन्हें एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करेंगे, किस ईयर के लिए मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी ईयर के लिए वो सिलेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका नेम जो भी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी ऐड करेंगे। उसका मोबाइल नंबर, लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो यहाँ से वो ऐड करेगा। रजिस्टर रजिस्टर करने के बाद वो लॉगिन विंडो पर आएगा और जो उसने लॉगिन डिटेल्स ऐड किए थे वो यहाँ से अपने लॉगिन डिटेल्स ऐड करेगा। जो ईमेल आईडी उसने ऐड किया था वो, जो पासवर्ड उसने सेट किया था वो लॉगिन करने के बाद जो भी आपका एग्जाम एडमिशन फॉर्म रहेगा वो एडमिशन फॉर्म उसे शो होगा। एडमिशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड होगा जिसमें फर्स्ट स्टेप में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि वो कैटेगरी वाइज है या नहीं है, यस और नो में आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपका जो प्रीवियस कॉलेज है मतलब 11th-12th से पास आउट होके उसने फिर आपके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा यस और नो में। अगर वो प्रीवियसली आपके ही कॉलेज में था तो यस करेगा, अगर नहीं था तो नो करेगा। उसके बाद उसके डिटेल्स वो अपने यहाँ से ऐड करेगा। उसके बाद जो एड्रेस है पूरा एड्रेस वो यहाँ पर ऐड करेगा। उसका नेटिव प्लेस, ब्लड ग्रुप्स क्या, ब्लड ग्रुप क्या है, उसका जेंडर,
स्टेटस डेट ऑफ बर्थ क्या थी? उसकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो सभी यहाँ से वो अपनी ऐड करेगा। उसके बाद उसका फोटो जो आएगा उसके एडमिशन फॉर्म पे, वो फोटो यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करेगा। उसके बाद उसकी सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर रहेगी, वो यहाँ से वो अपनी सिग्नेचर ऐड करेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर यहाँ पर यस है तो यहाँ से वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट उसे सबमिट करना है तो यहाँ से सबमिट कर सकता है। ये सब सबमिट करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप को जाएगा, जिसमें उसकी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी, जिसमें वो यहाँ पर हमने जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो उसे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। उसके बाद एसएससी में उसे जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा। उसमें उसका सीट नंबर क्या था, बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ से अपने वो ऐड करेगा। उसके बाद उसका जो मार्कशीट है वो यहाँ से वो अपलोड करेगा। उसके बाद 12 की जो है वो सभी डिटेल्स वो अपने यहाँ से ऐड करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होने से पहले उसे एक पेमेंट गेटवे का लिंक दिखेगा, जो कि जैसे कॉलेज में हम लेते हैं एग्जाम एडमिशन फॉर्म के लिए जो भी फीस रहती है एडमिशन से पहले, तो वो एडमिशन फॉर्म वो यहाँ से सबमिट करेगा। जब तक वो उसके एडमिशन फॉर्म की फीस नहीं आपके यहाँ पर अमाउंट जो है पे नहीं करता, तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट होने के बाद जो उसका एडमिशन फॉर्म है वो हमारे एडमिन के पास आएगा। एडमिन जो है हमारे सभी डिटेल्स यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स ऐड करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देगी। अगर हमें उनके फॉर्म्स चेक करने हैं तो यहाँ से फॉर्म चेक कर सकते हैं। उनके सभी डिटेल्स यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड पेरेंट्स एंड गार्डियंस इंफॉर्मेशन। तो जब तक वो यहाँ से अपना फॉर्म में से उसकी फीस नहीं पे करता तब तक उसका फॉर्म हमारे एडमिन के पास नहीं आएगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर फॉर्म आए हैं तो सभी स्टूडेंट के फॉर्म यहाँ पर दिखाई देंगे। जो हमारे एडमिन है वो यहाँ से एडमिशन कंफर्म करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर हमें स्टूडेंट्स को यहाँ से डिवाइड करना है, जैसे कि कॉलेज वाइज अगर सिलेक्ट करना है कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर अदर कॉलेज का है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स वाइज हमें उनका डेटा अलग करना है तो कोर्स वाइज कर सकते हैं, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, सब कास्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, एकेडमिक ईयर वाइज, ऐसे आप कर सकते हो। मीन्स आपके जो रजिस्टर कितने हैं, शॉर्ट लिस्टेड कितने हैं और आपके एडमिशन कंफर्म कितने हुए, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो भी रजिस्टर्ड है यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर है, तो उन्हें हमें रजिस्टर स्टूडेंट से लेकर हमें शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू कंफर्म लिस्ट। तो हमें लिस्ट में कंफर्म जैसे ही करेंगे, तो जैसे यहाँ पर ऐड टू कंफर्म लिस्ट करेंगे तो यहाँ से और एक पेमेंट की जो लिंक है वो स्टूडेंट्स के मेल आईडी पर जाएगी, एसएमएस जाएगा जिसमें पेमेंट गेटवे का लिंक रहेगा। तो जिस कोर्स के लिए उन्होंने एडमिशन लेना है तो वो कोर्स की जितनी भी फीस रहेगी उस ईयर के लिए वो उसे यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका एडमिशन जो है यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने फीस पेड की है उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी फीस जो है कंफर्म करने के बाद उन्होंने अभी तक फी नहीं भरी है तो उनका पेंडिंग है। तो इस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर उसकी फीस पेड की है तो उसका जो स्टेटस है यहाँ पर पेड है। तो इस तरीके से जो हमारे एडमिन है स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड स्टूडेंट देख सकते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और उनका एडमिशन जो है कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोर्सेस है, अगर कोर्सेस मैनेज करने हैं तो आप यहाँ से कोर्स मैनेज कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेस है सभी
कोर्सेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके कोर्स का नेम क्या है, उसका स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके लिए कितने सीट्स रहेंगे, तो वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो कोर्स की फीस है, वो कोर्स की फीस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मतलब एमकॉम फर्स्ट ईयर के लिए कितनी रहेगी, एमकॉम सेकेंड ईयर के लिए कितनी फीस रहेगी, थर्ड ईयर के लिए कितनी रहेगी, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपडेट करनी है फीस तो अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं। आपको फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है कि किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर हमने बनाया है कॉलेज ने, तो आपके एडमिन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन के लिए हमने कितनी फीस रखी है और उसका टोटल जो फीस है वो कितना है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और जो जैसे मैंने बताया था कि ये सभी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद स्टूडेंट जब अपना फॉर्म यहाँ से सबमिट करेगा तो उसे जो फॉर्म फी है वो फॉर्म फी का पेज ओपन होगा, पेमेंट गेटवे दिखेगा वहां पर। तो जो फॉर्म फी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ऐड फॉर्म फीस पर क्लिक करने के बाद जो फीस है वो यहाँ से सेट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस जो की हुई है हमने, तो एमकॉम फर्स्ट ईयर के लिए 1920 के लिए 600 फॉर्म फी है। अगर आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं। एमकॉम सेकंड ईयर के लिए मतलब जो भी ईयर वाइज फॉर्म फी रहेगी आप यहाँ से ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एडमिशन सिस्टम है वो इस तरीके से रहेगी, जिसमें स्टूडेंट अपना और दूसरी और एक चीज आप यहाँ पर ग्राफिकली देख सकते हैं, एनालिसिस की फर्स्ट ईयर के लिए टोटल सीट कितने थे, कंफर्म कितने हुए हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए टोटल सीट्स कितने हैं, उसमें से अब तक कितने कंफर्म हुए। इस तरीके से आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं और एनालिसिस आप प्रिंट कर सकते हैं, सेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस रहेगी, जिसमें जो स्टूडेंट है अपना फॉर्म फिल करेंगे। सबमिट करने से पहले फॉर्म फीस जो है वो आपको पे करेंगे, उसके बाद उसकी जो फॉर्म है सबमिट होगा और हमारे एडमिन जो है वो यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलुमनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि NAAC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें एलुमनी में हमारे जो एलुमनी है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट अपने सभी डिटेल्स ऐड करेंगे। अगर स्टूडेंट फीमेल है और मैरिड स्टेटस है तो आफ्टर मैरिज क्या डिटेल्स रहेगी वो यहाँ से वो ऐड करेंगे। उसके बाद वो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कौन से कोर्स के लिए था, उसका पासिंग ईयर क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो स्टूडेंट हमारे कॉलेज के लिए क्या कर सकता है, मतलब स्कॉलरशिप के लिए, लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टूडेंट जो भी हमारे कॉलेज के लिए वो कर सकता है वो ऐड करेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके यहाँ से रजिस्टर करेगा, जिसमें उसके पर्सनल डिटेल्स भी रहेंगे, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सभी डिटेल्स रहेगी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल है, जो श्याम सर ने अभी एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल में आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है वो अपनी कंप्लेंट जो है आपके यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। उस पेज पर जो है वो जितनी भी हमारी कमिटीज है वो सभी कमिटीज हमें यहाँ पर दिखाने बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमिटी है जिसमें सभी कमिटी मेंबर्स के नेम है, उनके डेजिग्नेशन है और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स है। अगर किसी स्टूडेंट को अपना कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर करना है आप स्टूडेंट ग्रीवेंस में, तो रजिस्टर स्टूडेंट ग्रीवेंस पर क्लिक करने के बाद वो स्टूडेंट इस पेज पर आएगा। यहाँ पर एक फॉर्म रहेगा जिसमें वो अपना सभी डिटेल्स ऐड करेगा, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद उसका क्लास का है, सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, PRN नंबर। नेक्स्ट अगर वो स्टूडेंट अपने कंप्लेंट जो है रिटर्न में देना चाहता है तो रिटर्न में दे सकता है। अगर उसे कोई फाइल अपलोड करनी है, जैसे एक आध फोटो वीडियो, अगर ऐसा कुछ उसे अपलोड करना है कंप्लेंट के लिए तो यहाँ से वो फाइल अपलोड कर सकता है। अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसे आपके पास सबमिट करना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो यहाँ से सबमिट अपलोड कर सकता है। उसके बाद उसकी डेट यहाँ पर ऐड करेगा, प्लेस ऐड करेगा। उसकी डिजिटल सिग्नेचर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से ऐड करेगा और अपना जो कंप्लेंट है वो यहाँ से सबमिट करेगा। उसके बाद जितने भी आपके पास कंप्लेंट्स आई है उस पर आपने कितने एक्शन लिए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद उसका एनुअल रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी ऑल सिस्टम्स है जिसमें सभी एक्सप्लेन करके हो चुकी है। यस। Thank you, Sandeep. So now
Now I think we can accept questions if any. Yes, dear participants, if you have any questions, you can directly ask. Yes, sir. There is a one question is asked by the one participant, Dr. Srikant Godse, sir. That is, what is CMS? That is So, the sir, right. So CMS is a content management system, wherein that is the difference between, we can say, like a static website and a dynamic website, wherein you get an admin panel to modify the content of the website. So the website is built in such a way that the content of the website can be modified. Otherwise, one has to make changes in the programming language that is used to build the website. So in CMS, we get an admin panel to update the content. Yes, dear participants, if you have any questions, you can unmute and you can ask the questions. Yes, thank you, sir, for such a wonderful presentation and such an interactive session. Thank you. Yes, sir. You have each and everything you have explained in a very systematic way, in a very simple language, and so we could you have covered the many aspects of the significance of a website in a NAC. So